Hello friends, welcome to the channel. I am Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. This is part 5 of the video of our series 100 Most Important Questions for TGT, PGT, MA English Entrance. Please do not forget to share and subscribe the channel. Take down all the notes, facts, explanation. Do not run just after knowing the right answer. Try to know the details behind and please do a very thorough study. Let us begin with the next question. You may also join our channel to get access to more videos for your preparations. Question number 41. 41 क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम क्योंकि 40 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं प्रीवियस 4 वीडियोस में, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है. इन हिज नॉवेल्स H.G. Wells portrays the character of lower middle class, aristocratic class, lower class और द कैपिटलिस्ट. तो आइए इस क्वेश्चन के थ्रू कोशिश करते हैं थोड़ा सा H.G. Wells के बारे में और उनकी नॉवेल्स के बारे में जानने की. ये एक इंग्लिश राइटर थे, प्रोलिफिक थे, बहुत सारी जॉनरेज में इन्होंने डजन्स ऑफ नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी, सोशल कमेंट्री वर्क भी, हिस्टोरिकल, सटारिकल, बायोग्राफिकल, ऑटोबायोग्राफिकल. और इनके कुछ नॉवेल्स काफ़ी फेमस हैं जैसे कि किप्स एंड दी हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली विच डिस्क्राइब लोअर मिडिल क्लास लाइफ. एंड कई लोग तो ये भी कहते हैं कि चार्ल्स डिकेंस के एक प्रॉपर सक्सेसर, एक वर्दी सक्सेसर हैं H.G. Wells. सो वेल्स इज नाउ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज science fiction novels and he is often called the father of science fiction as well, but eventually he decided to abandon science fiction for comic novels of lower middle class life. उनके लिखे हुए कुछ नॉवेल्स हैं जिसमें हमें प्रॉपर लोअर मिडिल क्लास पोर्ट्रेयल देखने को मिलता है. लव एंड मिस्टर लेविशम 1900 का, किप्स द स्टोरी ऑफ अ सिंपल सोल 1905 एंड द हिस्ट्री ऑफ मिस्टर पॉली 1910. So hence option number A, lower middle class, is the right answer. Next question. Veena. Veena is a character in H.G. Wells novels The Invisible Man, The Wheel of Chance, Kips or The Time Machine. The correct answer is option number D, The Time Machine. Veena is a fictional character in the novel The Time Machine written by H.G. Wells in 1895. And the concept of the novel of course is time travel. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जोसेफ कॉनरेड के बारे में है. बहुत ही फेमस नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है इन्होंने. जोसेफ कॉनरेड्स नॉवेल्स डील विद द एडवेंचर एंड रोमांस ऑफ माउंटेन लाइफ, सी लाइफ, सिटी लाइफ और सोशल लाइफ. तो अब जानते हैं थोड़ा सा मिस्टर कॉनरेड के बारे में. ही वॉज अ पॉलिश ब्रिटिश राइटर. तो आप लोग नेशनैलिटी बहुत अच्छे से याद रखिए. नेशनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में. कॉनरेड रोट मेनी स्टोरीज, नॉवेल्स एंड मेनी विद अ nautical natural setting that depicts the human spirit. and Conrad बहुत ही फैंटास्टिकली अपनी स्टोरीज को लिखा करते थे, मोस्टली एट सी. तो करेक्ट आंसर इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच वर प्रेजेंटेड सो realistically that listeners or watchers thought that the action was actually happening before their eyes. Option number B, sea life, is the right answer. Next question, question number 44. Walter Delamere is a poet of Georgian period, Romantic period, Victorian period और Edwardian period. हमें इन periods में से बताना है वॉल्टर डेलामेयर कौन से period से belong करते थे. Let us know about this writer as well. He was an English poet, short story writer and novelist as well. और इनको सबसे ज़्यादा जाना जाता है बच्चों से related poetry लिखने के लिए जिसका नाम था The Listeners. And he can be considered a Georgian poet. Option number A is the right answer. जानते हैं what is this Georgian poetry? The Georgian poets, अगर हम strictest definition लें, were those whose work appeared in a series of 5 anthologies named Georgian Poetry, published by Harold Munro and edited by Edward Marsh. तो 1912 और 11 के बीच में पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ था बाय द नेम जॉर्जियन पोइट्री, जिसको कि पब्लिश किया गया था हेरोल्ड मॉनरो के द्वारा और एडिट किया गया था एडवर्ड मार्श के द्वारा. द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ विच कंटेन पोम्स रिटन इन 1911 एंड 12. और इस ग्रुप में ये सभी पोएट्स इंक्लूडेड थे: एडमंड ब्लेंडन, रूपर्ट ब्रॉक, रॉबर्ट ग्रेव्स, टी.एच. लॉरेंस, वॉल्टर डेलामेयर जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, सिग्रिफिड सेसॉन एंड जॉन ड्रिंकवाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. इन शॉज प्ले, जी.बी. शॉ की बात कर रहे हैं हम. इन शॉज प्ले डैश अ प्रोफेसर चेंजेस द लाइफ ऑफ अ फ्लावर गर्ल
Candida, Widower's House, The Apple Cart or Pygmalion? The correct answer is option number D, Pygmalion. Pygmalion एक प्ले है GB शॉ का लिखा गया which was named after a Greek mythological figure and was first presented on stage to the public in 1913. ईयर्स याद रखिए अच्छे से. हेनरी हिगिंस इसके फिक्शनल कैरेक्टर का नाम है. अ प्रोफेसर ऑफ फोनेटिक्स who makes a bet that he can teach a Cockney floor girl Eliza Doolittle how to speak proper English, and this was showed in George Bernard's play Pygmalion. Question number 46. Conrad's novel Dash is set in Tsarist Russia. Under Western Eye, Nostromo, Elmer's Folly or Nigger of Narcissus? The correct answer is option number A, अंडर वेस्टर्न आइज, जो कि 1911 का एक नॉवल है. दिस इज ए नॉवल बाय कॉनरेड एंड इट टेक्स प्लेस इन सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया एंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड, एंड इज व्यूड as Conrad's response to the themes explored in Crime and Punishment. क्राइम एंड पनिशमेंट, जो कि दोस्तोयेव्स्की के द्वारा लिखा गया था, जो कि एक बहुत ही फेमस रशियन नॉवलिस्ट थे. उस नॉवल का एक तरीके से ये एक रिप्लाई है. So we can say that Under Western Eyes by Conrad is a response to Crime and Punishment by Dostoevsky. Dostoevsky जिनका की लिटरेरी वर्क जनरली ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करता है पॉलिटिकल, सोशल और स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में. ये एक 19th सेंचुरी के रशिया के बहुत ही फेमस राइटर थे एंड एंगेज विद अ वैरायटी ऑफ फिलोसॉफिकल एंड रिलीजियस थीम्स एज वेल. और उनका सबसे ज़्यादा एक्लेम्ड वर्क ही यही है, क्राइम एंड पनिशमेंट, जिसका कि एक रिस्पॉन्स हम कह सकते हैं अंडर वेस्टर्न आइज को. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. इन शॉज सेंट जून, जोन ट्राइज टू फ्री डैश फ्रॉम इंग्लिश आर्मीज. सेंट जून के बारे में थोड़ा जानते हैं पहले. दिस इज अ प्ले बाय GB शॉ अबाउट 15th सेंचुरी फ्रेंच मिलिट्री फिगर जोन ऑफ आर्क. जोन ऑफ आर्क के बारे में है ये प्ले, जिसका प्रीमियर हुआ था 1923 में. जोन ऑफ आर्क एक बहुत ही हेरोइक, नेशनल हेरोइन काइंड ऑफ फिगर है फ्रांस की, एंड शी वॉज अ गर्ल हु बिलीविंग दैट शी वॉज एक्टिंग अंडर डिवाइन गाइडेंस. जिन्होंने फ्रेंच आर्मी को लीड किया था, उसको मोमेंटस विक्ट्री भी दिलवाई थी और इंग्लिश पीपल को रिपल्स किया था इन 1429. सो it was an attempt to conquer France during the 100 Years' War. The correct answer is option number C, France. Next question number 48. Relations is a poem by A.K. Ramanujam, Sarojini Naidu, Toru Dutt और Nissim Ezekiel. Relations एक पोइट्री है जो कि लिखी गई है A.K. रामानुजम के द्वारा, ऑप्शन नंबर A, and it was published in 1971. Next question number 49. The story in which Kamala Das referred to a lesbian relationship is Iqbal, The Guest, The Doll for the Child Prostitute or In Love. The correct answer is option number A, इकबाल. इकबाल एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कि लेस्बियन रिलेशनशिप को मेंशन किया गया है. द शॉर्ट स्टोरी टाइटल्ड इकबाल डील्स विद द सिचुएशन इन अ वुमेन्स लाइफ वेडी टू अ मैन हु हैज हैड होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप विद हिज फ्रेंड. कमला दास, जिनकी पोइट्रीज हमेशा ही पोइट्रीज और शॉर्ट स्टोरीज हमेशा रिप्रेजेंट करती हैं उनके लिबरेटेड माइंड को, उनके व्यू पॉइंट्स को. द स्टोरीज ऑल्सो कैरेक्टराइज बाय लोनलीनेस. Question number 50. The author of The Home and the World is who of the following? मनमोहन घोष, श्री अरबिंदो, रविंद्रनाथ टैगोर और मुल्कराज आनंद. The correct answer is option number C, रविंद्रनाथ टैगोर. होम एंड द वर्ल्ड, जो कि 1916 का एक नॉवल है, बंगाली नॉवल रिटन बाय टैगोर, और ये बुक एक तरीके से इलस्ट्रेट करती है द बैटल टैगोर हैड विद himself between the ideas of Western culture and revolution against the Western culture. रविंद्रनाथ टैगोर जी के खुद के दिमाग में भी एक तरीके की कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग द वेस्टर्न कल्चर एंड रेवोल्यूशन अगेंस्ट द वेस्टर्न कल्चर, एंड द सेम स्ट्रगल हैज बीन शोन इन दिस नॉवल थ्रू दी सेंट्रल कैरेक्टर्स बिमला, निखिल एंड संदीप. घरे बैरे इसका नाम था, बंगाली नेम, एंड होम इन दी वर्ल्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन. 1984 में एक मूवी भी बनी थी इस पर, डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे. द रोमांटिक ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय सत्यजीत रे. इट इज बेस्ड अपॉन दी 1916 नॉवल घरे बैरे बाय रविंद्रनाथ टैगोर. और उनका ये स्क्रीन एडेप्टेशन जो है ये बहुत ही एग्जैक्ट
recreation माना जाता है of that text Khare Bere, which referred to Swadeshi movement as well. The end of this particular part, please let me know your score. Now we will soon meet with the next part. Keep studying, keep practicing. This will be your key to success, and please do not forget to share and subscribe to the channel. You may join our online classes or you can join our channel to get access to more videos. Best of luck for your exams.